Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss how to solve assertion and reason type questions for competitions as well as for board exams conducted by CBSE. This is a general video for all classes and for those subjects in which such kind of questions are asked. Now, first of all, we have to keep in mind that assertion and reason questions have been part of major competitive exams in India and globally. So among all different types of objective type questions, the most complicated one is assertion reason type. ये सबसे ज़्यादा complicated type questions होते हैं जिसमें बच्चे बहुत सारी mistakes कर देते हैं आंसर ढूंढने में. In this type of questions, students are provided with two statements. First statement को हम assertion बोलते हैं, second statement को हम reason बोलते हैं. And मैं एक statement से आपको इसको explain करती हूँ. First statement है sky is blue in color. Second statement है blue color is scattered the most. अब जो अगर मैं बीच में because लगा दूं तो इस तरह के जो questions होते हैं वो ही assertion और reasoning type question होते हैं क्योंकि blue color is scattered the most is the reason for sky is blue in color. अब अगर मैं इस because को हटा दूं तो formal way में ये question कैसे बनेगा? Because से पहले वाला part sky is blue in color will be assertion. और because के बाद वाला part blue color is scattered the most, that will be reason statement. अब जो assertion होता क्या है? Actually, it means a confident and forceful statement of fact or belief. ये तथ्य है. और जो दूसरी statement है वो reason है, उस तथ्य का कारण है. अब ये अलग बात है कि क्या जो second statement दी हुई है जिसको हम reason बोल रहे हैं वो assertion का उस fact का correct explanation दे रही है या नहीं दे रही. In this type of questions, the student has to read the assertion and reason statements carefully and choose the correct option from the following. Statement पढ़ने के बाद correct option choose करनी है. First option क्या होती है? Both assertion and reason are correct. Assertion और reason की दोनों की statements correct होती हैं. Reason is the correct explanation of assertion और जो second statement है जिसको हम reason बोल रहे हैं वो assertion का correct explanation दे रहा है. Second type की option जो है वो है the assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of the assertion. इसमें assertion और reason दोनों की statement तो correct हैं लेकिन actual में जो reason में लिखा हुआ है वो assertion का correct explanation नहीं दे रहा. और third option आती है our assertion is true but reason is false. जो fact है वो तो true है लेकिन उसका जो reason लिखा हुआ है वो false statement है. Fourth option आती है the statement of assertion is false. Fact ही false है एंड रीजन इज ट्रू लेकिन जो रीजन में स्टेटमेंट दी हुई है एक्चुअल में वो एक ट्रू स्टेटमेंट. लास्ट कुछ क्वेश्चन पेपर में एक और ऑप्शन आ जाती है जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है. अब सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती जिसमें एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स. आइदर assertion is false or reason is false or both statements are false. There is not much difficulty in such cases. But real challenge is when both are true. And you have to predict if the reason is the correct explanation of assertion or not. सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं और हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वाकई में जो सेकंड स्टेटमेंट है जो रीजन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा. अब इसके लिए तो हमें थोड़ा स्टडी चाहिए उस टॉपिक की और कंसेप्ट की. यू कैन गिव आंसर करेक्टली ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द assertion. And you also know its proper explanation. अगर हमें तथ्य पता है कि वो करेक्ट है उसके बारे में कॉन्फिडेंट है और जो हमें रीजन दिया हुआ है वो भी करेक्ट है और उसकी वो कैसे उस assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये सब तभी पॉसिबल है अगर हम प्रॉपर स्टडी करें, थॉरली स्टडी करें, कंसेप्ट को माइंड में रखें और प्रैक्टिस करें. अब सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि कोई स्टेटमेंट फॉल्स तो नहीं है. क्या assertion फॉल्स है या रीजन फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स है. जब ऐसा कुछ हो जाए तो फिर तो हमारा काम आसान हो जाए. एग्जांपल ले रही हूँ. assertion sky is blue in color, रीजन blue color scatters the least. इसका मतलब स्कैटरिंग के बेस्ड क्वेश्चन है. रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग में स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ और जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो एज कंपेयर टू रेड कलर की वेवलेंथ के कम होती है. तो विजिबल रेंज जो है उसमें एक ब्लू पार्ट मान लेते हैं एक में रेड
तो ब्लू की वेवलेंथ रेड से कम है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जितनी स्कैटरिंग होगी उतना ही वो लाइट ज्यादा फैलेगी और दूर तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आसपास फैल जाएगी। अब ये जो मेरा एक कंसेप्ट है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, स्काई इज ब्लू इन कलर। यस, स्काई इज ब्लू इन कलर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब मुझे चेक करने की क्या रीजन भी ट्रू है। ब्लू कलर स्कैटर्स द लीस्ट। अगर मुझे ये रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग पता है, वेवलेंथ तो ब्लू पार्ट और रेड पार्ट पता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी कम है, तो मैं इसको इजिली बता सकती हूँ। इस हिसाब से तो ब्लू कलर जो है सबसे ज्यादा स्कैटर होना चाहिए। तो मेरी सेकेंड स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये वाली ऑप्शन ढूंढ लेनी है। अब एक और मेरे पास इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, स्काई इज नॉट ब्लू, रीजन इज ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। स्काई तो ब्लू होता है, तो मेरी ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। अब सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है या नहीं? ब्लू कलर स्कैटर्ड द मोस्ट, यस, अभी मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग जो है कम वेवलेंथ वाली लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है। तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू। बस मुझे ये आंसर चूज कर लेना। अब थर्ड टाइप की क्वेश्चन आता है, स्काई इज नॉट ब्लू इन कलर, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट। स्काई तो ब्लू होता है, ये तो हो गई फॉल्स। रीजन, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट, नहीं जी, ये तो मोस्ट स्कैटर्ड होता है, तो ये भी हो गई फॉल्स। सो मेरा ये ऑप्शन आ गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अब एक और क्वेश्चन आया, assertion sky is blue in color. Yes, it is a true statement. Reason, because blue light is a visible wave. Yes, it is a part of visible wave. This statement is also correct. अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये इसका रीजन है। वो तभी पॉसिबल है अगर मुझे स्कैटरिंग के बारे में पता है, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग के बारे में पता है। क्योंकि रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग पता है तो ही मैं बता सकती हूँ कि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने की वजह से सबसे ज्यादा स्कैटर होगी, इसी की वजह से स्काई ब्लू है। अब ये विजिबल तो है भाई ब्लू कलर, लेकिन अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। दैट मीन्स माय ऑप्शन विल बी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. अब लास्ट में एक क्वेश्चन आ गया, स्काई इज ब्लू इन कलर, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। यस, स्काई इज ब्लू, ट्रू। ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट अकॉर्डिंग टू रेले लॉ। अगर मुझे इसके बारे में पता है तो मैं इजिली बता सकती हूँ, यस इट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Yes, both statements are true and reason is correct explanation of assertion. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.